Hello dear students. Today we are going to discuss about illustration on normal loss and abnormal loss. We discussed about the definition of normal loss, abnormal loss. Abnormal loss and normal loss have a difference. Normal is because of the nature of the business, like evaporation. Abnormal loss is because of our mistake. We understood yesterday lost by fire, loss by theft is your abnormal loss. Evaporation or any other because of natural reasons will be our, that is called normal loss. How to handle this normal and abnormal loss in your consignment account? We have taken a question from your final touch book. This says that X is the consigner, consigned goods to Y, and the units consigned were 1000 units and at the rate of 21 per unit. He paid freight rupees 750, octroi by Y rupees 140. At the last, Y told to X that I sold units of 650 units at the rate of 40 per unit. Stock left with me is 345 units and the commission which is paid to Y is to be 5% of sales. How to handle this account, this particular information in consignment account, we will be learning one by one. First I am drawing consignment account. This is our consignment account. Particulars, amount, particulars and amount, debit side, credit sides. Since consignment account is an account of nominal nature, so all expenses debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. Start from the beginning. The beginning is X consigned units to Y. How many? 1000. So we will write to goods sent on consignment. 1000 units are there, rupees 21 per unit, so the amount is 21,000 rupees. Second, freight paid by X. How much? 750 rupees. So to cash or bank, as the case may be, 750 rupees. Why? Because this is paid by X, so X will pay from his pocket, cash or bank. Now octroi paid by Y, that is 140 rupees. So here to Y, bracket में लिख दीजिए consignee. We discussed this yesterday that Y, whatever expenses Y is paying will be recovered from the consigner. Here the consigner is X. That's why X has written कि I have to pay this expense. So ultimately I will be paying to Y. So consignee लिखा and the amount is 140 rupees. Moving further, sold units are 650 at the rate of 40 per unit. So here इनकम हो गई कंसाइनमेंट की. सो किससे पैसा लेना है? कंसाइनी से लेना है. सो हियर यू विल राइट बाय वाई. नाउ वाई, हियर यू कैन राइट सेल्स 650 यूनिट्स इनटू 40 पर यूनिट. सो 2 4 5 are 20, 2 4 6 are 24 प्लस 2 26,000 की जो गुड्स हैं वो सेल हो गई. नाउ व्हाट इज द स्टॉक लेफ्ट विद देम? 345. सो बाय consignment stock, what is the value of the consignment stock? We will be calculating. 345 units are left. What was the cost price of this 345 unit? One was of 21 rupees. So multiply it with 21. This will be one figure which we will be doing it. Second comes, what is the expenses? All expenses made by the consigner will come here. So that consigner has paid 750. So freight 750 was paid on how many units? 1000 units. And for 345 units, the calculation would be as follows. Third, now octroi is a direct expense paid by the consignee. We discussed yesterday all direct expenses will be the part of the consignment stock. So we will be taking this octroi on proportionate basis. Octroi 140 for 1000 units and for 345 units, whatever will be the total sum of this will be your consignment stock.
Now here the point comes which is not mentioned in this question. You will identify 650 units have been sold, balance is 345. If you add 650 plus 345, you will be finding it is 995 units. Total units were how many? 1000. So there is a gap of 5 units. What to do this with this gap? Now this gap may be presumed as the normal loss also and abnormal loss. In your question it is assumed to be normal, but I will be handling both in one question. First we will presume it to be normal, then we will presume it to be abnormal. If it is a normal case, we will not do anything. It will go as like we will believe this is due to the process of the business, so it will be a part of your business. So all the expenses related to this normal loss will be recovered from consignment account. It means 1000 का जो expense है will be spread on 995 units. This way 5 units normal loss would automatically be adjusted, or you can say that the cost of this cost is not of 1000 but this cost is of 995. Reason behind 5 is the normal loss. Depending upon your thought, if you can understand 1000 को spread करना है 995 पे क्योंकि वो normal loss है. सेकेंड, यू कैन थिंक अदरवाइज ऑल्सो कि इसको 995 मान लो तब कैलकुलेशन कर लो. अंडरस्टैंडिंग इज नॉर्मल लॉस की कभी वैल्यूएशन नहीं करनी है क्योंकि नॉर्मल लॉस है, बिजनेस का लॉस है और वो बिजनेस के अंदर कैलकुलेशन के अंदर अकाउंट्स में नहीं आता है. सेकेंड पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड इफ़ आई प्रिज्यूम इट टू बी एबनॉर्मल लॉस, कि ये ऐसा लॉस है जो एबनॉर्मल है, मतलब मेरी मिस्टेक से हुआ है. If it is presumed to be abnormal loss, it means it is not part of consignment account. फिर मुझे इसको कहाँ लेके जाना है? Yes, I will be taking into profit and loss account, but उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्या है? जैसे हमने कंसाइनमेंट को कैलकुलेट किया वैसे ही हम एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करेंगे. बट माइंड माई वर्ड्स, फिर जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो कंसाइनमेंट क्या करेगा? 995 का ही खर्चा दिखाएगा, 995 का ही इनकम दिखाएगा. तो फिर ये जो 5 का यहाँ पर एक्स्ट्रा बना हुआ है ना, ये जो 1000 है इधर 995 है, तो हम यहाँ तो क्या करेंगे, दोनों को 1000 के लेवल पे लेके आएंगे, मतलब 5 की कैलकुलेशन को भी इधर लिख देंगे. तो उसको क्या लिखने की एंट्री होती है? बाय एबनॉर्मल लॉस. मतलब हमने क्या किया, एक एंट्री पास कर दी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. मतलब सारे लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं. ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है. तो हमने क्या किया, वो खर्चा जो हमारे कंसाइनमेंट का नहीं है उसको कंसाइनमेंट से निकालेंगे. कहाँ डाल रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस में. एबनॉर्मल लॉस से कहाँ लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो मैंने इसकी एंट्री पास कर दी एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. तो अब एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी है. बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन होगी जैसे हमारी कंसाइनमेंट स्टॉक की हुई थी. तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट्स, इनका कॉस्ट कितना था? 1 कितने यूनिट की है? 21 की. सो 21 इंटू 5 कर लेंगे, 105 रुपीज़ हो गया. अब ये 5 यूनिट्स का हमारा खर्चा आ गया. अब इसके बाद इसके ऊपर एक्सपेंसेस हुए हैं. कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए? फ्रेट का हुआ है. तो फ्रेट का एक्सपेंस 750 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 5. तो इसको आप कर लीजिएगा कितनी वैल्यूएशन आती है, हम कर ही लेते हैं. 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 3750 डिवाइडेड बाई ये है, तो यहाँ पर आ गया 3.75. सिमिलरली अब ऑक्ट्रॉय का रोल कब आता है? कल हमने क्लास में किया था कि आपने ये देखना है कि नॉर्मल लॉस हुआ कब है. अगर तो ये लॉस, यहाँ पर मैंने कल आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, 1 2 3. ये है कंसाइनर जब वो गुड्स चलाता है, ये है कंसाइनी का सिटी, मतलब मैं बोलता हूँ ये अमृतसर है, ये चंडीगढ़ है और ये चंडीगढ़ में हमारे कंसाइनी का गोडाउन है. तो यहाँ से गुड्स यहाँ तक जा रही हैं. यहाँ तक जो भी खर्चे करेगा कौन करेगा? कंसाइनर करेगा. कंसाइनी ने चंडीगढ़ में गुड्स रिसीव की. अगर तो लॉस जब वो रिसीव कर रहा है तब पता चल जाए कि यहाँ पर लॉस हो गया है, इसका मतलब 1000 चली,
कंसाइनर ने कैलकुलेट की 995 पहुंची है, तो खर्चा सिर्फ यहाँ का ऐड होगा और कोई ऐड नहीं होगा। बट अगर उसको पता कब लगा, जब वो गोडाउन में आ गई, तो इसका मतलब यहाँ से लेके गोडाउन तक का जो खर्चा है उसमें दो खर्चे थे हमारे, एक डायरेक्ट था और एक इनडायरेक्ट था। हमें कौन से लेने थे, डायरेक्ट वाले लेने थे। तो फिर हम ये वाला खर्चा जो डायरेक्ट है वो भी इस एबनॉर्मल लॉस में ऐड करेंगे। सिंस इन दिस क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो लॉस है एबनॉर्मल लॉस वो यहाँ पर पता चला। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला तो कल कर लिया था, ये वाला रहता था। सपोज़ करते हैं कि वो हमें वहाँ बाद में मतलब गोडाउन में जाके पता लगा, तो फिर ऑक्ट्रॉय के भी हम एंट्री करेंगे। ऑक्ट्रॉय का क्या करेंगे, 140 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 5। सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही होगा, 700 आ जाएगा और 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.7 आ गया। सो टोटल कैलकुलेशन विल बी एबनॉर्मल लॉस की इतनी हो जाएगी। सो अगर आप देखेंगे 105 + 3 108.75 हो गया। इसके अंदर हम ये 0.7 ऐड करके ये कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पर ये कैलकुलेशन आ जाएगी। हम इसकी टोटलिंग करके और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। अब ये मैं इसको यहाँ पर इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद करके देखिए, सारा अकाउंट दोबारा बना के देखेंगे। जब आप ये अकाउंट बना के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से 26,000 यहाँ हो गया, स्टॉक आएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी क्रेडिट साइड की दैट विल बी हाई। इट मीन्स ये लेस है। अगर ये लेस है तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो बैलेंस आएगा ये हमारे कंसाइनमेंट का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दिस वे वी हैंडल नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस इन योर कंसाइनमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में मैंने 2-3 चीज़ें एलेबोरेट करने की कोशिश की। नंबर 1, कंसाइनमेंट अकाउंट बनता कैसे है। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ यहाँ पर, येस यू नीड टू कमीशन जो था वो 5% ऑफ सेल्स था जो हमने दिया नहीं है। किसको देना है, वो भी हमने कंसाइनी को देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y और यहाँ पर मैं कर दूँगा कमीशन 5% ऑफ सेल्स। 26,000 का 5% कर लीजिए तो 5 6 30, 3 5 2 10 + 3 13, तो ये 1300 रुपया आपका कमीशन बनेगा जो आपने किसको देना है, कंसाइनी को देना है। So in this case we have attempted to elaborate और अंडरस्टैंड अकाउंट कैसे बनता है, डेबिट में कौन सी आइटम्स आती हैं, क्रेडिट में कौन सी आती हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है और नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कैसे होती है। आई वुड रिक्वेस्ट यू इसी क्वेश्चन को आप दोबारा करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, एंड इफ़ देयर हैपन्स टू बी एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन द क्लास। थैंक यू वेरी मच।